So today we are going to start with our next topic of the chapter judiciary, and that is judiciary and rights. Okay, we have talked little bit about judiciary and rights in our last class, but I will start with the start from the start. एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ. Okay, so judiciary and rights, you all are aware about our fundamental rights. Okay, so how judiciary and rights are interconnected, interrelated, और judiciary और rights का क्या relation है. So judiciary plays a very vital role in protecting our rights. Okay, it is judiciary is entrusted with the task of protecting rights of individuals. According to our constitution, the main duty of the judiciary is to protect our fundamental rights, protect the rights of individuals, and for that there are two constitutional provisions given in our constitution, and they are: first, it can restore fundamental rights by issuing writs of habeas corpus, mandamus, uh, quo warranto, prohibition, etc. There are some of the writs which can be issued to restore the fundamental rights of the citizens, and these writs were issued. These writs are issued by Supreme Court as well as the High Court. According to the Article 32, it is Supreme Court can issue writs, and according to the Article 226, the High Courts have the power to issue the writs. Now, second provision which is given in our Constitution through which judiciary can protect our rights is the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional, inconsistent, and therefore non-operational. Okay, according to Article 13, Supreme Court declare the concerned law, any law which is inconsistent, okay, uh, um, which is inconsistent. So Supreme can declare that law unconstitutional and non-operational. I already given you the example of that. That is the 99th constitutional amendment of the uh, National Institute of Appointment of Judges. There is an institute, ओके जो 99th अमेंडमेंट में था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन थी. ठीक है, एक लॉ बनाया गया था जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए लॉ बनाया गया था, बट दैट लॉ वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल because Supreme Court said that it is inconsistent. ठीक है, the ideas of this commission is not matching to our constitution, so that's why they called that commission unconstitutional, and therefore they declare that as non-operational. Okay, and it is mentioned in our Article 13. Through this power is given to the Supreme Court, and it is mentioned in our Article 13. So now together both these provisions of the Constitution establish the Supreme Court as the protector of the fundamental rights and the interpreter of the Constitution. You all are aware about protector of fundamental rights. We are studying this part in from our earlier classes also. The Supreme Court plays a vital role in protecting our fundamental rights, and it is the main duty of the Supreme Court to protect our fundamental rights. But it also work as the interpreter of Constitution, and how it interpreted the Constitution, how he interpreted the laws through the judicial reviews. Now this is a very important term which is not given in our, which is not written in our Constitution, no, not a type of word which is mentioned in the Constitution, but there are various articles and there are various articles जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में कुछ कुछ चीजें ऐसी मेंशन है कि दैट इज रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, now so now what is this judicial review?
The power of the Supreme Court or High Court to examine the constitutionality of any law. If the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the Constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. Now, what is this judicial review? सुप्रीम कोर्ट और पावर कोर्ट की एक ऐसी पावर जहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कि वो क्या कोई भी जो लॉ बना है कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज गिवन है उसको वो अनमैच तो नहीं कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, या आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो इलीगली वो आइडियाज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो उससे डिप्राइव्ड तो नहीं हो रहे हैं. सो दीज आर सम, दिस इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, where they can see or where they can review the constitutionality. किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वो चेक करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन में आते हैं कि ये लॉ जो है इनकंसिस्टेंट है, it is not matching our it is not the ideas are not matching with the constitution and with the provision, the whatever the provisions given in our constitution, and after that they can declare that law as unconstitutional and inapplicable. And the high courts and the supreme courts work in this matter as a original review, original law review के original jurisdiction बोल सकते हो, original review बोल सकते हो, because to protect the fundamental rights. Okay, and if any law, अगर लोग उनको लगता है कि लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तरह नहीं चल रहा है, तो दे कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल आफ्टर रिव्यूइंग इट, ओरिजिनली रिव्यूइंग इट. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि वो लॉ को क्या कर सकते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं. Now, the review power of the Supreme Court includes power to review legislation on the grounds. किन grounds में review कर सकते हैं legislation की power को? They can review it on the grounds if the law violates the fundamental rights. अगर कोई भी law जो है हमारे fundamental rights को violate करते हैं. For example, हमारा एक fundamental right था पहले, मतलब fundamental right to property का जो law था, अब उसके लिए क्या है, लैंड सीलिंग्स वगैरह. अभी हम जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट्स, मेन फंडामेंटल राइट से हटा के दूसरे प्रोविजन में डाल दिया गया. बट ये उस टाइम पे हमारा जो फंडामेंटल राइट क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था. हाउ बहुत से लोगों के, बहुत से फार्मर्स के गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आई वांट दिस लैंड, क्योंकि सपोज कि कोई भी उनको काम करना है, ठीक है, सपोज रेलवे लाइन ही लगानी है और उस रेलवे लाइन के बीच में वो लैंड आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि हम लैंड सीलिंग्स कर सकते हैं. तो अब वो उस लैंड का जो मालिक है, फार्मर जो है या फिर उस लैंड का जो भी मालिक है, वो बोल रहा है, ओनर है, कि मेरा तो राइट इससे क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर हमारा कोई फंडामेंटल लॉ वायलेट होता है तो उसको रिव्यू करता है, ओरिजिनली रिव्यू करता है, और अगर सच में हमारा वो फंडामेंटल राइट वो वायलेट हो रहा होता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बाद, आफ्टर दैट दे कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental right. Any law which is against our fundamental right, Supreme Court has the power to strike down that law. ठीक है, the main thing given in our constitution is anything or any law which is against our fundamental right, which violate the fundamental right, judiciary has the supreme power to strike down that law.
ओके, सो फर्स्ट ग्राउंड तो आपको समझ आया कि अगर कोई लॉ, हमारा फंडामेंटल लॉ वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस लॉ को रिव्यू करती है. अगर इट इज रियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनकंसिस्टेंट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, then they can declare that law unconstitutional. Now second ground is if the law violates फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर. नाउ लुक एट दिस, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ, सेकेंड ग्राउंड जो बता रही हूँ, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स स्टेट की पावर, यूनियन गवर्नमेंट, state government and district government, okay, the local government, these are the three, मतलब this is the federalism, okay, federal powers हैं. अगर फेडरल पावर्स क्या करती है, फेडरल यूनियन गवर्नमेंट बोलती है स्टेट को कि हम आपकी पावर्स ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने सबने क्लास 10th में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट के बारे में पढ़ा है, फेडरलिज्म में ही था आई थिंक, ये स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब्जेक्ट. स्टेट लिस्ट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे वो वर्क करते हैं, यूनियन लिस्ट ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट जो यूनियन और स्टेट दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, दोनों उस पे वर्क करते हैं. बट सपोज कोई यूनियन गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बना रही है जो स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट है उसको क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, then judiciary can review that, judiciary has the power to review that law. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक XYZ आपका स्टेट है, ठीक है, अब वहां का आप बोल सकते हो कि पुलिस का जो होगा, पुलिस का, या फिर आप ये सोच सकते हो वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, या फिर आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया. दीज आर सम ऑफ द पावर्स एंड दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स which are mainly concerned by the state only. तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई ऐसा एक लॉ बनाती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है ट्रेड एंड कॉमर्स, तो उन्होंने बोल दिया नहीं यहाँ पे तो इतना, इस स्टेट में इतना टैक्स लगेगा तो लगेगा ही, तो अब state government is not happy with that and it is against the provisions given in the constitution, then judiciary has the power to review that, judicially review that law, and if they find it inconsistent, then they can, if they find the distribution of power is laid down by the constitution, or union government or state government is taking advantage of their superiority, then judiciary can officially declare that law inconsistent and non-operational or unconstitutional. Okay, so I hope now this is clear how judiciary can review legislation on different grounds. First, on the grounds if the law violates the fundamental rights, and second, if the law violates federal distribution of the power, कि जो federal जो state है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ही आता है. हम ओरिजिनली जो है कि स्टेट यूनियन वर्सेस स्टेट हो गया, तो उसके डिस्प्यूट्स को, स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया तो उसके डिस्प्यूट्स को कौन हैंडल करेगा, ठीक है, उनके डिस्प्यूट्स को स्टेट, ये जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा. सो इट इज द वन ऑफ द ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court. So the federal distribution of the power, अगर इनकी लॉ को वायलेट करता है, कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसको इनकंसिस्टेंट है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, देन सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी कैन declare that law illegal or non-operational. Okay, now it is mentioned that the writ power and the review power of the court make judiciary very powerful. ऐसा माना जाता है. Writ powers means it is given in our one of our fundamental right to constitutional remedies. Then that if individuals fundamental right is violating, then according to this fundamental right to constitutional remedies, they can pursue, they can go to the court for their justice. So, and court can issue writs.
So writ powers and the review power of the court make the judiciary very powerful. ये जो writ power है और जो review power है वो judiciary को क्या बनाता है, बहुत ज्यादा powerful बनाता है कि according to writ power he can check कि individual के right तो violate नहीं हो रहे हैं, क्या कोई इसमें आप बोल सकते हो कि कोई उनका शोषण तो नहीं कर रहा है। तो रिट पावर और रिव्यू पावर की कोई भी लॉ बना दिया कि अब गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि अब आपको अपनी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देती हूँ कि you have no right to speech. So this is one of our fundamental right to speech. राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बना देती है कि आपको अपना आप कुछ भी नहीं, अब जैसे न्यूज चैनल्स को बोल देगी गवर्नमेंट कि आप अपना व्यू पॉइंट या ओपिनियन नहीं रख सकते. सो दिस इज द लॉ व्हिच इज वायलेटिंग द इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स और ग्रुप्स फंडामेंटल राइट बिकॉज इट इज देयर फंडामेंटल राइट टू स्पीच. ठीक है, they can give their opinions or viewpoints because that is their fundamental right. तो ऐसा माना जाता है रिट पावर और रिव्यू पावर जो जुडिशरी है, जो कोर्ट की है, ये जुडिशरी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है, सुपीरियर बनाती है. Power means that the judiciary can interpret the constitution and law passed by the legislature. Now यहाँ पे जो power है उसका मतलब क्या है? अब कि वो जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट कर सकती है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस वो चेंज कर सकती है. एंड लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर, कोई भी लॉ पास किया जाता है लेजिस्लेचर को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है आफ्टर रिव्यूइंग इट. तो बहुत से बच्चों का, बहुत से लोगों का, इवन आपके बुक में जो उन्नी मुन्नी, आई थिंक उन्नी मुन्नी इज द नेम गिवन टू दैट कार्टून कैरेक्टर्स, उनका भी डाउट आता है कि अगर हम उसका मतलब तो मैं तो जज ही बन जाता हूँ, तब मेरे को इलेक्शंस की और पब्लिक सपोर्ट की कोई चिंता ही नहीं है और मेरे पास सच में बहुत सारी पावर आ जाएगी. कैसे पावर आ जाएगी कि जुडिशरी, तो एक ये बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट है. आप भी सोचना इस बारे में कि अगर जज के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, ठीक है, किसी भी लॉ को नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दे, तो ये तो सबसे बड़ी पावर हो गई ना. अब लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है और वो इलीगल डिक्लेयर कर रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है जुडिशरी. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिबेटेबल पॉइंट. इसके बारे में सोचना बेटा, ठीक है. तो पावर मीन्स दैट द जुडिशरी कैन इंटरप्रिटेट. पावर का मतलब क्या है? जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट कर सकती है और लेजिस्लेचर में जो भी लॉज बने हैं उसको इंटरप्रिटेट कर सकती है. ठीक है. Now it makes many people think that this feature enables the judiciary to protect the constitution effectively and also to protect the rights of the citizens. So many people think कि ये जो फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करना, लॉज जो भी लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको इंटरप्रिटेट करना और रिव्यू करना, रिट्स पावर जो है, ये जुडिशरी को क्या करती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में जुडिशरी हेल्प करती है और सिटीजन्स के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. ये ही जो पावर है यही जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पावरफुल बनाती है. The practice of entertaining PILs plus the practice of entertaining PILs, ये public interest litigations जब से आया है, ये जब इसके साथ ये जुडिशियल रिव्यू और रिट पावर्स के साथ जब से PILs भी फाइल होने लगे, ये जुडिशियरी की वन ऑफ द पावर हो चुकी है कि वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है. बिकॉज नाउ anybody can file like the PIL, ठीक है, anybody can file the case for any group of the society. So this is one of the major power which मतलब आप ये बोल सकते हो सोने में सुहागा होना कि जुडिशरी के पास ऑलरेडी इतनी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, रिट पावर्स हैं
और वो इंटरप्रिटेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। प्लस ये जो पीआईएल्स को एंटरटेन कर रही है, पीआईएल्स को जो देख रही है, इससे जो सिटीजन्स के पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। So this is all about judiciary and rights, and how it is practicing and how it is protecting our rights. Now class, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा इट इज मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल इन मेनी अदर कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जैसे साउथ एशिया में और साउथ अफ्रीका में कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म को इंडियन जुडिशरी से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वहां पे जो साउथ अफ्रीका है वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उनके बिल ऑफ राइट्स में ऑलरेडी मेंशन है, मतलब उनका ये फंडामेंटल राइट है पीआईएल फाइल करना, कि हम जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू रिलीजन, माइनॉरिटी राइट्स, राइट टू इक्वालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स है और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हमारे राइट्स गिवन है। वैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये साउथ अफ्रीका में क्या है, फंडामेंटल राइट है वहां के सिटीजन्स का, ठीक है। और जिससे कि किसी भी पर्सन का अगर केस जो है वो वायलेट होता है, या फिर केस जो है वो दे कैन फाइल द केस, अगर उनको लगता है कि हमारा राइट जो है ये हमारा राइट है जस्टिस लेना। So this is one of the public interest litigation is one of the fundamental right in South Africa. Now in chapter rights also, आपने chapter जो rights हमारे fundamental rights है उसमें right against exploitation के बारे में भी mention है। तो ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, अभी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि हमने उसमें पढ़ा था आपने कि जो ये जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट करता है, बैन करता है फोर्स्ड लेबर, ठीक है, ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश की, किडनैपिंग हो गया, कि कोई ट्रेड बिजनेस कर रहा है ह्यूमन फ्लैश का, ह्यूमन बींग्स का, वो भी प्रोहिबिट करता है। हजार्डियस आपकी जॉब्स जैसे आपकी ब्रिक क्लिंग्स हो गए, जिसमें आज भी ये वन ऑफ द मेजर आपका प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है चाइल्ड लेबर में। ब्रिक क्लिंग्स में बहुत से बच्चे क्या है काम करते हैं, या फिर ऐसी हार्मफुल जो फैक्ट्रीज हैं, चूड़ियां बनाने की हो गई, या फिर कुछ बहुत से वेपन्स बनाने की, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे जो है चाइल्ड लेबर है। तो ये जो हजार्डियस आपकी जॉब्स हैं वहां पे एम्प्लॉय करना बच्चों को, तो ये सारी चीजें प्रोहिबिट करता है। पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ कुड दोज हुज राइट्स वर वायलेटेड अप्रोच द कोर्ट्स, तो कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीआईएल और एसएएल, और आप बोल सकते हो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ये पॉसिबल कर रही है लोगों को कि वो अपनी केसेस जो हैं, या फिर जो अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो उनके बिहाफ पे कुछ लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स के पास उनके राइट्स के लिए, उनके जस्टिस के लिए जा सकते हैं। Because it is said that judiciary has the wide varieties of power and they can give justice to anyone, and any individual can go to the court if they think their fundamental right is violating. They can encroach their rights. So जो आपके हमने पीआईएल वाले सेक्शन में जुडिशियल एक्टिविज्म में ये भी पढ़ा था कि जो जेल इनमेट्स है, कि पुलिस अपनी कुछ भी मनमानी कर रही है, कि उनका भी तो अब जेल में है, ठीक है, क्रिमिनल है, कोई बात नहीं, तो उनका भी आप क्या कुछ भी यूज करोगे क्या, कैसे भी उनके साथ ट्रीट करोगे, उनके भी कुछ राइट्स है, उनको भी देखना चाहिए, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के, जो इंडिविजुअल्स के हैं, जो जुडिशरी क्या करती है, टेक केयर करती है उनके राइट्स का। ओके, नाउ this is all about judiciary and rights, and how judiciary became powerful with the judicial review. So